Namaste. I, J.V. Neha Sharma, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. Today's topic is Introduction of Compiler. So, in this, this is the introduction of the whole subject compiler design, modern compiler design, where you can learn how compiler works and what is the significance of compiler construction and design behind every system and behind every program running, because compiler is the one who compiles the program first and give you errors, and after that you run the program, right? So let's start with the introduction of compiler. So the computer interprets the instructions as ones and zeros. A program can be written in assembly language as well as in high-level language. This written program is called the source program. The source program is to be converted to the machine language, which is called an object program. A translator is required for such translation. So, program translator translate code of programming language into machine language instruction. Generally, computer programs are written in what? In computer languages, of course, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, सी, assembly language, COBOL, BASIC, and many others. So, which should be translated into the machine language before execution. So, programming languages translators are classified as follows. Translator are as follows: assembler, compiler, and interpreter. So here you can see basically जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करते। हम क्या करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं होती है तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। और वो मशीन लैंग्वेजेस क्या हमें हमारी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सो लाइक कोबोल, सी, बेसिक एंड असेंबली लैंग्वेजेस। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं जो हम लिखते हैं, ये सोर्स प्रोग्राम होते हैं जो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और ये ट्रांसलेट करता कौन? ट्रांसलेटर। तो इसके लिए सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं सोर्स प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। अब प्रोग्राम ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। अब ये ट्रांसलेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। So these are our translators: assembler, compiler, and interpreter. So first is compiler. So compiler are the translators which translate all the instruction of the program into machine code, which can be used again and again. The program which is to be translated is source code. जो भी program हम लिखते हैं हमारे कंसोल पे, या फिर आप जावा दे रहे हैं तो जावा बीन्स पे, सी दे रहे हैं तो सी टर्बो सी पे, राइट, डॉट नेट और मैनी प्रोग्रामिंग, मतलब आप जिस भी सिमुलेटर पे प्रोग्राम लिख रहे हैं वो हमारा सोर्स प्रोग्राम होगा। देन हम क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, टारगेट प्रोग्राम मिलता है। तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा मशीन कोड में। तो सोर्स प्रोग्राम जो है इसका इनपुट होगा और आउटपुट क्या मिलेगा हमें, टारगेट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। So object code is the output for the secondary storage device. The entire program will be read by the compiler first and generate the object. So this is the compiler. An important role of compiler is to report any error in the source program that it detects during the translation process. बेसिकली अगर हम जावा का प्रोग्राम भी रन करते हैं तो हम उसमें दो स्टेप में प्रोग्राम चलता है हमारा, जावा सी प्रोग्राम में। तो जो जावा सी जो होता है हमारा, वो सी किसके लिए होता है, कंपाइलर के लिए होता है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ले लेंगे, पाइथन को छोड़ के हम पहले कंपाइल करते हैं, उसके बाद हमें एरर मिलती है और फिर हम रन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि, तो यहाँ पे भी यही है कि जब हम जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा करके रन करते हैं तो हमें एरर अगर होगी हमारे प्रोग्राम में तो एरर मिल जाएगी। और अगर कोई एरर नहीं है, हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है कि एरर फ्री प्रोग्राम है हमारा, तो हम क्या करते हैं फिर जावा प्रोग्राम में, राइट। तो वो क्या होता है, वो हमारा रनिंग होता है। तो जब हम
पहला स्टेप चलाते हैं कंपाइलेशन का, तो हमारा प्रोग्राम किस में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में, जावा में। फिर बाइट कोड से हमें टारगेट आउटपुट में कन्वर्ट होता है, राइट, क्योंकि उसमें दो स्टेप पे प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे भी यही है कि इनपुट जो है टारगेट प्रोग्राम हमें मिला और उससे हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये जो टारगेट प्रोग्राम है ये क्या है, अब EXE प्रोग्राम है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है, जिसको हम रन कराते हैं और हमें हमारा आउटपुट मिलता है सेकंड स्टेप में, जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं कंपाइल कराने के बाद। ठीक है, तो दिस इज द compilation. So compiler is very important to know the errors in our program and successfully run the program. Interpreter is another kind of translator. Instead of producing target program as a translation, appear to directly execute the operation specified in the source program or input supplied by the user. An interpreter does the work in real time. Each time you run the code, it is compiled line by line, like basic interpreter. So इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है, हम जब कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं तो पूरा सोर्स कोड एक साथ रन हो जाता है, और जब हमें एरर मिलती है तो उसके आगे उसका लाइन नंबर भी लिखा होता है कि इस लाइन नंबर में ये एरर है। पर इंटरप्रेटर की अगर हम बात करते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल नहीं करता, वो हर एक लाइन बाय लाइन हमारा प्रोग्राम जो है उसे कंपाइल करता है। तो जब भी आप कोड चलाएंगे तो वो कंपाइल होगा लाइन बाय लाइन। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, सोर्स प्रोग्राम, इनपुट, इंटरप्रेटर एंड देन आउटपुट, क्योंकि वो हर बार एक एक लाइन को चलाता रहेगा। उसके बाद में आता है ओवरव्यू ऑफ कंपाइलर्स। सो बेसिकली कंपाइलेशन प्रोसेस की बात करें तो वो इंटरनली वर्क कैसे करता है, या उसका डायग्राम है। तो हमने सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम बनाया, फिर उसको कंपाइल करा। अब जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसमें हमने कंपाइल करा, उससे हमें क्या मिला, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मिला। फिर हम क्या करेंगे, रन टाइम वाला प्रोसेस चलाएंगे, जैसे कि मैंने जावा का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये वाला जो है वो तो क्या हुआ, जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा, और ये वाला जो स्टेप है वो कहाँ हुए, जावा प्रोग्राम नेम, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है। इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर में, तो इंटरप्रेटर में अगर डेटा जाएगा तो डेटा उसको मिलता रहेगा, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कंपाइल कर रहा है। तो सोर्स प्रोग्राम, इंटरप्रेटर एंड रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि लाइन बाय लाइन कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद में आता है अदर प्रोग्राम्स टू क्रिएट टारगेट प्रोग्राम। सो सोर्स प्रोग्राम है, फिर प्री प्रोसेसर में जाएगा, मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम बनेगा, फिर कंपाइलर के पास जाएगा, फिर टारगेट असेंबली प्रोग्राम है, एंड देन असेंबलर से रीलोकेटेबल मशीन कोड में जाएगा, देन लिंकर लोडर एंड देन टारगेट मशीन। तो बेसिकली ये प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर लोडर ये मेन रोल निभाते हैं किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए या फिर उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज प्री प्रोसेसर, बेसिकली अ सोर्स प्रोग्राम may be divided into modules stored in separate files. Preprocessor is assigned with the task of collecting the source program. It may also expand shorthand called macros. C में भी पढ़ते हैं अपन macros into source language statements. तो ये प्री प्रोसेसर क्या करता है, बेसिकली ये पूरे प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है ताकि इजी रहे उसको कंपाइल करना। अब कंपाइलर जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज अ आउटपुट। और असेंबलर क्या करता है, असेंबलर प्रोड्यूस करता है रीलोकेटेबल मशीन कोड, मतलब कि हम उसे मूव करा सकते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन पे। तो आउटपुट फ्रॉम द असेंबली लैंग्वेज। लिंकर लोडर क्या काम होता है, बेसिकली जो लार्ज प्रोग्राम होते हैं उनको छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया प्री प्रोसेसर ने। अब ये जो रीलोकेटेबल मशीन कोड है जो इसको असेंबलर से मिल रहा है ऊपर से, जो कि आउटपुट है असेंबलर का, तो लिंकर क्या करेगा, उसे लिंक करेगा फिर से उसे रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल एंड लाइब्रेरी फाइल्स इनटू द कोड, है ना। जो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में जो हमारे बट गए हैं रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल्स, उन सबको क्या करेगा, फिर से आपस में लिंक करेगा, जो कि एक्चुअल वर्क, जो कोड जो है वो एक्चुअली मशीन पे वर्क कर रहा है। ये लिंकर का काम होता है। लिंकर क्या करता है, एक्सटर्नल मेमोरी की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे रिजॉल्व करता है, उसे एड्रेस करता है, वेयर द कोड इन वन फाइल में रेफर टू अ लोकेशन इन अनदर फाइल। और लोडर क्या करता है, इन सबको एक साथ लेता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है और मेमोरी में डालता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये लोडर का काम होता है। तो ये प्रीवियस एग्जांपल में जो प्रीवियस डायग्राम में जो आपने देखा था फ्लो चार्ट में,
तो इसमें आप देखेंगे तो सोर्स प्रोग्राम है, फिर वो प्री प्रोसेसर के पास में जा रहा है, प्री प्रोसेसर से हमें सोर्स प्रोग्राम मिल गया, कंपाइलर के पास गया, कंपाइल किया, उसे असेंबली प्रोग्राम मिला, असेंबलर का आउटपुट है रिलोकेटेबल मशीन कोड। अब ये रिलोकेटेबल मशीन कोड लिंकर क्या करेगा, इसे लिंक करेगा, और लोडर क्या करेगा, इसे मेमोरी में लोड करके टारगेट मशीन कोड दे देगा। तो ये इनका सबका अपना अपना असाइन टास्क होता है, ठीक है। So this is all about the basic introduction of the compiler, how compiler work, what are the translators, how compiler internally work, and the other programs to create target program that are preprocessor, compiler, assembler, linker, loader, right? So that's all for this lecture. Thank you so much.